Thank you, Hitesh. Good evening, all of you, and welcome to our session by Bandhan Mutual Fund. First of all, thank you, all of you. Thank you, Hitesh and team, for giving us the opportunity wherein, we can come and discuss few important parameters or point through which selling of mutual fund becomes easy for all of us. Okay. Thank you, Hitesh, for the introduction. So we will, without much ado, I think let us start the session. Okay. So जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज ऑन आर्ट ऑफ मार्केटिंग म्यूचुअल फंड. Hitesh, one thing I would like to know from you, our participants can drop a chat message, right? And can they Yes, ma'am. unmute themselves and talk? No, मैम, दिस इज इन वेबिनार फॉर्मेट, तो वो अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, बट वो चैट में आपसे बात कर They can सकते हैं. chat, right? Okay, ठीक है. Okay, thank you so much. So, let me ask you all one particular question. Okay, so जब हम जाते हैं अपने audience के पास, and when we are talking, as this is a mixed set of distributors, who are, some of you are experienced, some of you are new. Okay, so what is your idea? Is selling mutual fund easy, or what are the ways through which you can sell the mutual fund quickly? Is it something easy? तो आप, my point here to understand is कि आप क्या करते हो? आप केवल SIP का एक प्रोडक्ट सेल करते हो या आप कॉन्सेप्ट सेल करते हो? What is your way of selling? Okay, Sandeep says concept. Okay, great. Can I have few more thoughts from all of you? Okay, great. Vandana also says concept. Raju. Okay. So guys, the reason I am asking all of you is this is because अपने को ये जान लेना जरूरी है, that why selling a concept is important. Right? Because when I go and sell a product, if my focus is product per se, what happens is I get the customer maybe for 1, 2 or 3 times. But when I sell a concept, I get the customer for lifetime. Right? I get the customer for lifetime. Do you all agree with me on this? कि अगर हम concept selling करते हैं तो I get the customer for lifetime. At least इतना श्योर है कि जब कस्टमर के पास पैसा आ रहा है तब वो मुझे एक फोन तो कर दे रहा है, राइट? दो the situation is, the scenario, this kind of a scenario is like very good, good to hear kind of a situation. But definitely I know कि अगर customer मुझे सामने से भी कॉल नहीं कर रहा है, even if I call and I pitch something, मेरी buying already हो जाती है. Right? Why? Because जब हम concept selling करते हैं, okay, we do mind sharing. Right? जब हम concept के basis पे sell करते हैं, तब हमें customer का mind share मिलता है. Right? और अभी तक ये proven है कि अगर मुझे customer का mind share मिल गया ना, then what will happen is मेरे पास wallet share automatically आता जाएगा. Right? अगर मुझे कस्टमर का माइंड शेयर मिल गया तो आई डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द वॉलेट शेयर जो है वो मुझे अपने आप ऑटोमेटिकली आता रहेगा, राइट? इवन दे आर ओके कॉन्सेप्ट्स ऑफ म्यूचुअल, एग्जैक्टली. सो देयर आर 2 कमेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड डिफरेंट अदर कस्टमाइज्ड डिपॉजिट स्कीम. ऑब्वियसली हम क्या बात कर सकते हैं इसके ऊपर हम आते हैं, राइट? बट yes, as Sandeep said, एक बार कॉन्सेप्ट मैंने क्लैरिटी दे दी, okay, then automatically वो बाइंग मेरे पास आ जाती है, right? Now we also see while we are sharing the concept, अगर मैंने उनको ये भी समझा दिया ना कि कब, what is the right time to enter the market, जब मार्केट गिर रहा है, अगर आपके पास पैसा है, इन्वेस्ट करो, then definitely at that point of time, moment people start following the market, and the moment they see कि कुछ डाउनफॉल आ रहा है मार्केट में, दे विल ऑटोमेटिकली नाउ दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट. ओके, नाउ व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दिस गाइज, इट इज इंपॉर्टेंट to know that what are we going to cover today, okay, and why mutual funds. Okay, basically what we are going to cover is what are the 3 ways to achieve financial independence. Okay, why is it required, goal based investments, assets class and investment, and the investor categorization.
ठीक है, I will come to few points which is very, very important. Okay, now this is something that we all talk about. Okay, Shankar says, please discuss what is the concept. So don't worry, we will talk about it. Okay, now, whenever we go and speak to the customers, okay, whenever we go and speak to the customers, what happens, this is a something, ये ideal scenario में हम लोग बात करते हैं लोगों से, right? जहाँ पे, you know, they need, first of all, we try to understand what is their financial goals, okay? रिमेंबर वन थिंग, अभी तक मैं सिर्फ फाइनेंशियल गोल्स की बात कर रही हूँ, मैं अभी तक कॉन्सेप्ट सेलिंग क्या करना, कैसे करना है, इसके ऊपर मैं आई नहीं हूँ, ठीक है? ओके, अभी तक जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे बात करना है, इसके ऊपर मैं अभी आई नहीं हूँ, अभी तक मैं सिर्फ फाइनेंशियल गोल्स की बात कर रही हूँ। अब ये अगर गोल्स हम देखते हैं, ओके, ये तो सबके फाइनेंशियल गोल्स है ना, आपके भी है, मेरे भी है, maybe Hitesh is there, there are so many people there, right? सभी के ये common financial goals है। अब let's say out of this I am picking one, ठीक है, out of so many financial goals, ठीक है? अब हम जानते हैं ना, इंडिया एज अ मार्केट हमारा भी प्रायोरिटी चेंज हो रहा है, राइट? अब अगर मुझे ये जो अपने पास सिनेरियो अभी अवेलेबल है, इसमें अगर मुझे आपको बोलना है कि इसको प्रायोरिटाइज करो, ओके, तो पहले कुछ सालों पहले अगर मुझे प्रायोरिटाइज करना होता तो मेरा रैंकिंग क्या होता? सबसे पहला चाइल्ड एजुकेशन, वो मेरी टॉप प्रायोरिटी होती, देन बाइंग योर ओन हाउस, देन मैरिज एक्सपेंसेस, यहाँ पे मैरिज एक्सपेंसेस लिखा है, इट इज फॉर किड्स, ठीक है, मैरिज एक्सपेंसेस फॉर किड्स, ड्रीम कार, वेकेशन, क्रूज विद फैमिली, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड देन लास्ट में आता है मेरा रिटायरमेंट, राइट? एम आई करेक्ट? लास्ट में आता है मेरा रिटायरमेंट, ओके। अब वर्सेस कमिंग टू दिस पीरियड गाइस, दिस पीरियड अगर मुझे प्रायोरिटाइज करना है, ओके, वापस से इन सिनेरियो को, तो इसमें से कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जो इसमें अभी हट चुके हैं। People no more want to save for their kids marriage at least. लोग आजकल क्या बोलते हैं कि भाई हम अपने बच्चों को पढ़ा देंगे, उसके आगे का जो खर्चा है वो बच्चे अपने आप मैनेज कर लेंगे, राइट? यस, बाइंग अ हाउस इज स्टिल माय प्रायोरिटी, राइट? ठीक है, फॉरेन टूर, आजकल लोग बेसिकली दे वांट टू एंजॉय, राइट? एंड स्पेशली आफ्टर कोविड हम लोग इतना तो समझ ही गए हैं कि बहुत सारा पैसा, रादर ये हमारा थोड़ा सा माइंडसेट हो गया, बिकॉज कोविड जैसा टाइम हमने देखा है, सो हमें थोड़ी सी ये अश्योरिटी कि पता नहीं कब बुलावा आ जाए, निकल जाना है, तो इसके पहले हम घूम फिर लेते हैं, राइट? बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज पीपल हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन रिटायरमेंट ऑल्सो, ओके। लाइक इफ यू आस्क मी, ओके, अगर मुझे प्योरली अपने बेसिस पे प्रायोरिटाइजिंग करनी है, okay, my first priority will be saving for the retirement, right? Why? उसके बहुत सारे अलग अलग reasons है कि नहीं? सबसे पहली बात जो है, I don't want to be dependent on anybody, right? अब अक्सर मैंने the reason why we want to meet you is or suggest an investment planning for you, because if you invest into a retirement plan, so what will happen is कि आपका जो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना अभी का, वो आप मेंटेन कर सकते हो इन योर रिटायरमेंट लाइफ ऑल्सो, ओके, राइट? सो व्हाट दे टेल मी इज कि इफ यू इन्वेस्ट, इफ यू प्लान फॉर योर रिटायरमेंट, आपका जो अभी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आप मेंटेन कर सकते हो ड्यूरिंग द रिटायरमेंट ऑल्सो, राइट? क्या सब ये कहते हैं? क्या ये पिच होता है हमारा? क्विक यस और नो प्लीज, so that I'll get the pulse कि हम लोग सोचते क्या है। What do you think? ये हम सब बोलते हैं, राइट? अच्छा, अब संदीप कुमार बासु ने लिखा है why. Okay, now this is very interesting. Now why को संदीप जी मैं क्या समझू? Is it like why question or is it like yes? Okay, great.
ठीक है, हाँ। सो ओके, चलो अब मेजॉरिटी, अब काफी लोग मुझे यस आ चुका है इसमें, तो लोग अब बोल रहे हैं कि ठीक है, दे वांट टू पिच मी अ रिटायरमेंट प्लान। व्हाई? बिकॉज इट विल हेल्प मी मेंटेन माय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, बट मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, जब भी मुझे ये कोई कहता है ना, मैं कहती हूँ नहीं, आई डोंट वांट टू मीट यू। यू अंडरस्टैंड? आई विल रिपीट, ओके, मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ। जब मुझे कोई कहता है कि वी वांट टू मीट यू बिकॉज वी हैव सम रिटायरमेंट सॉल्यूशंस जो कि आपको मदद करेंगे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने में, मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे आपसे नहीं मिलना। ये मेरा आंसर नहीं क्यों होता है, हालांकि ये यस होना चाहिए, राइट? व्हाई डू आई से नो? एनीबडी? ओके, सो आई एम सॉरी बट देर इज समबडी जिनका मुझे नाम दिख रहा है यहाँ पे, वीवो V2307। ओके, सो आपने लिखा है इन्फ्लेशन, ओके, कंसिडर्ड। डिस्ट्रस्ट, सौरभ से डिस्ट्रस्ट, दैट डज दैट मीन आई डोंट ट्रस्ट यू? नो, आई एम नॉट गोइंग देयर। अभी तक तो ट्रस्ट, इन्फ्लेशन, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, अभी तक मैं वहां पे पहुंची ही नहीं हूँ, बिकॉज मैं, आप जो मुझे पिच कर रहे हो ना, मैंने उससे अभी तक कनेक्ट ही नहीं कर पाई हूँ। बट मैं क्यों कनेक्ट नहीं कर पाई हूँ? ओके, मनोज सेज बिकॉज ऑलरेडी टेकन रिटायरमेंट सोल्यूशन। नहीं मनोज, अभी तक नहीं लिया। ओके, अरुणवा बिकॉज वी थिंक दैट द पर्सन इज डूइंग दैट फॉर हिज ओन बेनिफिट। नहीं, अभी भी नहीं। हेल्थ केयर, शिवाशीष कहते हैं हेल्थ केयर, नो। प्रबोध सेज फियर फॉर लॉस ऑफ मनी, नो। मनेश, समवन थिंकिंग अबाउट टाइम किलिंग देन ही कॉलिंग मी, नो। नहीं, सबको, किसी को लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं नहीं, अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला है। थिंक क्विकली। सेलिंग, क्या आप मुझे सेल कर रहे हो? वो तो आप एनी विच वेज कर रहे हो, राइट? राजू जी, वो तो आप एनी विच वेज कर रहे हो। टुडेज मनी प्रॉब्लम, अभी नहीं। प्रहलाद, आई हैव मनी टू गिव यू। यू आस्क मी 10 लाख रुपीज, आई गिव यू, but still you have not yet hit the right chord. Shiv says bias about what? Shankar says no concept about, ji nahi. Okay, now let me tell you, okay, now if you are somebody, who comes to me and, okay, not think about retirement, nahi, safety for retired life, nahi. Okay guys, now I'm giving the answer. Okay, अब अगर आप मुझे आज आके ये बता रहे हो कि मैम अगर आप इन्वेस्ट करते हो हमारे रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स में या प्लान्स में, ओके, इसका जो रिटर्न्स आएगा ना, दैट विल हेल्प यू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट यू आर हैविंग टुडे, तो बॉस आई डोंट नीड यू, राइट? व्हाई? बिकॉज I want to have a better standard of living 20 years or 15 years down the line. आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैं चाहती हूं कि आज से 15 साल या 20 साल के बाद जब मैं रिटायर करूं ना, तब मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो ना, वो आज से बहुत बेहतर हो। ओके, लेट्स से इवन इफ आई से कि मुझे 10 साल बाद रिटायर करना है, ओके, तो विश्वप्रिया, आज आप मुझे जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, 10 साल बाद अगर ये मेरा सिर्फ आज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है ना, तो मुझे आपका प्रोडक्ट नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, आज मैं ड्राइव कर रही हूँ होंडा, आप मुझे बोल रहे हो कि मैम आप इन्वेस्ट करो हमारे प्रोडक्ट्स में, 10 साल बाद भी आप होंडा ही चलाओगे। विल आई बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट? आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, राइट? यू टेल मी कि मैम आज आप होंडा चला रहे हो, हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग ऐसे ही करते हैं कि जब आप रिटायरमेंट भी अपना लेते हो ना, तब भी जाके आप सीधा के सीधा मर्सिडीज में बैठ सकते हो, यू कैन ड्राइव योर ओन मर्सिडीज। दैट इज द काइंड ऑफ वेल्थ बिल्डअप वी विल डू। नाउ टेल मी, एम आई इंटरेस्टेड नाउ? क्या अभी मैं इंटरेस्टेड हूं आपके इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए? am I making sense to you guys? हाँ, अब हो गया ना सिंपल। आज मैं होंडा में, आपका प्रोडक्ट मुझे हेल्प कर रहा है कि बस 10 साल बाद आपके पास मर्सिडीज होगी। आई विल कॉल यू, आई विल से सुजीत, मनोज, किशोर, कम टू मी, आई वांट टू डिस्कस विथ यू हाउ यू कैन हेल्प मी इन गेटिंग दैट मर्सिडीज, राइट? अब क्या हो रहा है एग्जैक्टली संदीप? बेटर देन टुडे,
करेक्ट। अगर आपके प्लान्स हैं जो मेरा लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में बेटर कर रहे हैं ना, देन आई एम इंटरेस्टेड इन मीटिंग यू बॉस। वेरी क्लियर। सी आज के टाइम पे ना टाइम इज नथिंग लेस देन मनी। एक तो मैं मनी भी आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, राइट, प्लस मेरा टाइम भी मैं दे रही हूँ। सो द पॉइंट दैट आई एम गिविंग यू, ओके, इट हैज टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। आप मुझे बताओ आप क्या वैल्यू ऐड करोगे अपने सोल्यूशन से मेरे लाइफ में, then only you will make sense to me. क्लियर है गाइस? अब यहां पे मैंने आपको क्या कर दिया, मैंने कर दिया आपको कॉन्सेप्ट सेलिंग। ठीक है, अब मुझे ऑलरेडी आपसे बाइंग मिल चुका है कि नहीं? अब मैं आपको बताऊंगी कि ठीक है, ये जो हम प्लान कर रहे हैं ना आज से 10 साल में मर्सिडीज एंड बंगलो, उसके लिए हम लोग को क्या क्या करना है। ओके, ऑप्शन है आपके पास, लमसम है, वेरी गुड, आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट, बट मेरा फोकस किस पे कि आप रेगुलर इन्वेस्ट करो, बिकॉज आई वांट टू इम्बाइब दैट हैबिट ऑफ रेगुलरली इन्वेस्टिंग इन यू। वेरी सिंपल एग्जांपल, राइट, क्या आज कोई हमको आके ये बताता है कि मुझे मॉर्निंग एंड रात में दोनों वक्त ब्रश करना है? नो, दैट इज द लाइफस्टाइल दैट हैज बीन इम्बाइब्ड इन मी, right? So investment or SIP is nothing but a lifestyle that we want to imbibe in our customers' life. Are we all clear on this? A quick yes or no. Abhi tak clear hai sab? And am I making sense? A quick yes or no. Let me see. क्या होता है वो fastest finger ना? Let us see. Great, great guys. ओके, सो ये हो गई मेरी कुछ कॉन्सेप्ट्स की बातें। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? अब ओके, सो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमें, सी एंड बंधन हमारी तो कोशिश है कि हम हर सेवर को इन्वेस्टर बनाएं। व्हाई वी वांट टू मेक एवरी सेवर अ इन्वेस्टर? बिकॉज लॉजिक बहुत सिंपल है। आप अगर पैसे सिर्फ सेव कर रहे हो, आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, देन उसका कोई पॉइंट नहीं है, right? If your money cannot buy luxury and comfort for you, obviously why I'm saying luxury and comfort, because money cannot buy happiness, it cannot buy love, it cannot buy emotions, right? Materialistic चीजें सारी मैं खरीद सकती हूँ, ठीक है? तो आपका अगर पैसा केवल घर में पड़ा हुआ है तो वो केवल आप उसको सेव कर रहे हो। ग्रो तभी होएगा जब आप एक इन्वेस्टर बनोगे, एंड दैट इज वेयर आवर ऑब्जेक्टिव इज। ओके, नाउ व्हाई इन्वेस्टमेंट करना है गाइस? ये बहुत ही सिंपल है, जो यू नो आप और मैं हर दिन हर रोजमर्रा की लाइफ में ये बात करते हैं, राइट? अ वेरी क्विक थिंग, यू नो, कई बार हम सोचते हैं कि अरे ये तो इतना सिंपल चीज है, ये क्या बात करनी है इन्वेस्टर से, राइट? बट देन दीज आर दी थिंग्स, यू नो, जो उसको हिट करती है, राइट? सिंपल सी बात है। मतलब आई रिमेम्बर, you know, when I was in college. Okay, I have a big message that somebody has written to me. What 10 years I would do yesterday. I need to. Okay, yours is a little lengthy question. I will come back to you. Okay, at the end of the session. Okay, now coming to this point, why it is important to keep harping on the inflation? Because बहुत सिंपल सी बात है, you know, अपने कॉलेज का टाइम याद कर लो। कॉलेज के टाइम पे हमको क्या मिलता था? दिन का मे बी, यू नो, 10 या 15 रुपए मिलती थी, या 10 या 15 रुपीज मिलता था, जिसमें अपने को पूरा दिन निकालना था, जहां पे अपने बस से कॉलेज जाके रिटर्न आने का जो फेयर होता था वो भी इंक्लूड होता था, राइट? या आज आप अपने बच्चे को बोल दो 500 रुपए का नोट थमा दो, और बच्चे को आप ये बोलो कि जा बेटा हैव अ पार्टी, बच्चे का रिएक्शन क्या होगा? कैसे देखेगा वो आपको? विल ही बी हैप्पी? आप उसको 500 रुपए दे रहे हो और आप उसको बोल रहे हो कि जा बेटा अपने दोस्तों के साथ जा, चिल कर, मूवी देख के आ, क्या बच्चा खुश होगा? बच्चा बोलेगा अरे मम्मी पापा आप ही रख लो ये 500 रुपए, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी। बेचारा 300 रुपए की तो टिकट आ जाती है उसकी, राइट? वो अब खाएगा क्या? एंड अभी तक ओके, संदीप हैज बर्स्टेड आउट लाफिंग। ओके, अब 500 में से 300 रुपए तो चले गए टिकट के। मतलब अगर उस बेचारे को पॉपकॉर्न भी खाना है तो ही हैज टू बोरो मनी फ्रॉम समबडी एल्स, राइट? अभी 3 घंटे की मूवी में ही विल नीड वाटर, और अभी तक तो हमने घर से थिएटर और थिएटर से घर जाने का एक्सपेंस तो जोड़ा भी नहीं है, right? But then these are the points that we need to continuously keep harping to our customers. Okay,
एक सेकेंड ना, मतलब I think I will like to take this question. Okay, so Pratima says, good evening, ma'am. Life is volatile. Market is volatile. After 10 years, what should I do with Mercedes? I need 3 to 5 crores for better lifestyle and family relaxation. If it's customer's view, then what will the reply be? And asset allocation. Kindly guide. Now, Pratima, I will tell you, अगर आपको ऐसा कस्टमर मिल रहा है ना, जिसकी ऑब्जेक्टिव्स इतने क्लियर है लाइफ में, देन ट्रस्ट मी, आप बहुत ही लकी हो. ओके, बिकॉज ये जो एक कस्टमर है ना, ये ऑलरेडी जानता है कि इसको क्या चाहिए और इसको जो चाहिए उसका वैल्यू क्या है. ओके, सो डेफिनेटली ही इज द कस्टमर. अब ऐसे लोगों को भी ना टैकल करने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है, प्रतिमा, वेर इन you up definitely, the customer that you're talking about is an aware customer. He's a known customer. उसको चीजें पता है, right? So you just try to scale them, rate himself or his investment between 0 to 10, 10 being the highest. ठीक है. अब वो आपको कहता है कि ठीक, आप उसको पूछो कि आप 0 to 10 के बीच में आप कहाँ पे अपने आप को रेट करते हो. वो बोलेगा आई रेट माई सेल्फ ऑन 6 on 7. ठीक है सर, 7 to 10 में के बीच में आप जो डिजायर कर रहे हो ना, to have this 3 to 5 crores in coming few years, that is also possible. But clarity इतनी आप रख लो कि अगर आपको 3 से 5 करोड़ रुपए चाहिए, that is also possible. Only thing is, जो अमाउंट आज आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी वो एक हायर अमाउंट रहेगा. I'll come to that later on. ठीक है प्रतिमा, I hope I have partly answered your question. Okay, ठीक है. Now coming to this important thing. Okay, why systematic investment is important? Because it ensures that you don't become lazy or irresponsible. Guys, normally, okay, ऐसा aware customer हमको बहुत कम मिलते हैं, right? But the point is, normally customers किस टाइप के होते हैं? सैलरी आई, मैंने अपने EMIs बिल्स वगैरह पे किए, जो खर्चा करना था वो मैंने खर्चा किया, एंड देन ऐसे कि ठीक है, अब इतना जो पैसा बचा है ना, अब इतना जो पैसा बचा है इसको मैं इन्वेस्ट कर देता हूं. ठीक है, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारी जो शक्ल है ना थ्रू आउट द मंथ यही होती है. अगर आपको एक और बात याद दिलाऊं कॉलेज टाइम की, ये वो है जो महीने के 5 दिन अमीर रहता है. He is that kind of a person who is rich for first 5 days of the month, right? क्यों? Because first 5 days में उसके पास पैसा आया, उसने अपना बिल पे किया, खर्चा कर लिया, एंड अब बचेगा यार, सेविंग के लिए तो पैसे बचते ही कहाँ है. हाउ मेनी पीपल टेल यू दैट? टेल मी. आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, एक ये कॉमन आंसर आपको मिलता है, अरे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए पैसे बचते ही कहाँ पर है, राइट? सो जितने लोग ये वाला अप्रोच लेके चलते हैं ना, एंड गाइस डोंट बी सरप्राइज अगर आपको आज भी ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे लोग होते हैं. ठीक है, जो आज भी सारा कुछ पैसा खर्चा करके बैठे रहते हैं. दो चीज, एक तो उनको लगता है कि पैसे हैं नहीं सेव करने के लिए, एंड दूसरा आपको ये भी बहुत ऐसे लोग मिलते हैं who are very proud about themselves also, right? ओके, रिजा मुखर्जी से आज ही मिलके आया हूँ, वेरी गुड. बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जो आपको कहते हैं अरे कल किसने देखा यार, आज जियो और खत्म करो, राइट? ऐसे लोगों के लिए ना मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर होता है. ओके, ऐसे कि सर व्हाई डू वी व्हाई आर 2 days इन वीक जिसको हम वीकेंड अलग रहता है. डेफिनेटली यस, हम जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, राइट? खाते हैं अपनी फैमिली के साथ, एंजॉय करते हैं, राइट? तो ये जो हमारा कल है ना गाइस, ये बिल्कुल सैटरडे संडे की तरह है. रिटायरमेंट, अगेन फॉर एन एग्जाम्पल, रिटायरमेंट की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज रिटायरमेंट? रिटायरमेंट इज नथिंग बट सैटरडे संडे एवरी सिंगल डे ऑफ लाइफ, राइट? तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेरा ये एटीट्यूड है
देन मेरा काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा कि भाई जैसे ही आपकी सैलरी आती है अपना ईएमआई बिल पे करो, जो पैसा बचता है सबसे पहले इन्वेस्ट करो, और जो बच जाएगा ना उसको आप खर्च करो ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा ही स्माइली फेस है, ओके। बट लेट मी टेल यू, ये जो स्माइली फेस है ना, ये कुछ महीनों के बाद बनता है। इनिशियली हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली डन दिस? आप में से कितने लोगों ने ये सेकंड वाला अप्रोच खुद के ऊपर ट्राई किया है? इन्वेस्टर के ऊपर छोड़ दो, हाँ, वो तो मतलब दूसरों पे आजमाने वाली बात नहीं। अच्छा, ओके, नाउ समबडी सेज देयर इज नो साउंड। मैम यू आर परफेक्टली ऑडिबल। परफेक्ट है ना हितेश, कोई दिक्कत हाँ नहीं है जी। ना? यस। ओके ओके, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन हितेश। ओके, अच्छा, so now Sandeep says yes he does. Okay, now Sandeep, tell me one thing, okay, जो हमारा ये अप्रोच होता है कि सैलरी आई, बिल्स पे कर दिया, पहले इन्वेस्ट किया, बचा खुचा पे स्पेंड किया, इनिशियल फ्यू मंथ्स कैसे होते हैं? इनिशियल फ्यू मंथ्स कैसे होंगे ना गाइस, जहां पे हमको लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा कैश क्रंच हो रहा है, राइट? व्हाई डू आई नीड टू सेव सो मच? बिकॉज क्या होता है, एवरी एवरी टाइम व्हेन वी गो आउट, और आजकल तो एवरीथिंग इज ऑन फिंगर टिप्स ना, शॉपिंग वगैरह सब कुछ, एंड व्हेन आई सी कि बॉस ये खरीदने के लिए ना इस मंथ में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आई विल हैव टू पुश इट टू नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे क्या होती है, हाँ, okay, so Arunava says initial few years are really tough. Samarjit Pural also says very tough. Right. Why? Because अभी हम compromise कर रहे हैं. Or rather, if I have to put in positive words, guys, what happens is we have now stopped doing impulsive buying. आप लोग इम्पल्सिव बाइंग का मतलब समझते हो ना, विदाउट रियलाइजिंग कि मुझे ये चीज का रिक्वायरमेंट है या नहीं, बट बस एक्साइटमेंट में हम जो चीजें खरीद लेते हैं ना, वो होती है इम्पल्सिव बाइंग। और जब मैं सेकंड वाला अप्रोच लेती हूँ ना, मेरा इम्पल्सिव बाइंग जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, राइट? इनिशियल फ्यू मंथ्स, लेट मी टेल यू समथिंग, इट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड, ओके। जो हमारे लाइफ में चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जो भी है ना, वो सबका रीजन है ना, ये जो यहाँ पे छोटी सी चीज है ना, दिमाग जिसे हम कहते हैं, ब्रेन, इट इज द ओनली वन थिंग दैट इज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ओके, योर माइंड विल स्टार्ट सेइंग अरे क्या करना है, मतलब इतना सेव करके, इतना इन्वेस्ट करके करना क्या है? Okay, better you enjoy today. Okay, but guys, let me tell you, once you try to imbibe the second approach in you, okay, first few months or maybe first few years, you might feel that crunch कि नहीं यार मुझे ये नहीं करना चाहिए. But trust me, after a couple of years, when you see that, your portfolio is building up, okay, आपका जो एक financial backup create होने लगा है ना, जब आप उसको देखोगे ना, you will feel so better about it. You will say कि अच्छा है, because, this very much proves the line which says, if you spend on everything that you don't need today, listen to me carefully, if you spend money buying things you don't need today, you won't have money to buy important things tomorrow, right? Or you won't have money to buy things that you need tomorrow. आज ही मैंने अपना सारा पैसा खत्म कर दिया उन चीजों पे जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कल जो चीजों की मुझे एक्चुअली जरूरत होगी लाइफ में, वो खरीदने के पैसे नहीं बचेंगे मेरे पास, ओके। एंड इफ आई हैव दिस सेकंड अप्रोच, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू इम्बाइब इन आवर कस्टमर। नाउ समबडी सेड इन द चैट कि ये जो हमारी जेन जी वाली क्राउड है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत देती है। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, ओके, हम जिसको आज जेन जी कह रहे हैं ना, ओके, आई बिलीव मोर ऑफ दैट इट इज अ स्टेज ऑफ लाइफ, ओके। देयर वॉज अ स्टेज ऑफ लाइफ इन योर एंड माइन लाइव्स ऑल्सो, जहां पे इवन वी वर, राइट, बिकॉज इट इज अ टाइम वेर यू आर अ फ्री बर्ड। आपको ना खर्चा सोचना है, आपको ना फाइनेंशियल कमिटमेंट है, ना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये एटीट्यूड आ जाता है। बट द मोमेंट देयर इज स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, राइट, और आप अकेले घूमते हुए
सुखी फैमिली बहुत टाइम तक बर्दाश्त नहीं कर पाती है आपका सुख, तो वो क्या करते हैं फिर? एनीबडी? ओके, फिर फैमिली क्या करवा देती है? फिर फैमिली आपकी शादी करवा देती है, राइट? और जब आपकी शादी हो जाती है, देन व्हाट हैपेंस इज यू ऑटोमेटिकली गेट इनटू दैट रिस्पॉन्सिबल जोन. At that point of time, you're not only responsible for your life, but your spouse's life, your kids' का life. Then what happens is ये पूरा जो है, ये एक जो vicious circle है, वो वापस से बनने लग जाता है. Okay? So if you have this Gen Z with you, okay, don't worry. Okay. So Sandeep says barbadi. Okay. So that is when one gets married, is it? चलो ठीक है. हाँ, okay, the grasshopper and the story. Very interesting. Right? So what happens is this is just a phase of life. And if you have this Gen Z, if you are there to do the hand holding for them at this unstable point of life, once they get stable in life, trust me, who is their go-to person? It is nobody else, but it is you. Okay, and that is where, you know, उनको समझाने के लिए हमको बहुत जरूरी है कि हम उनको कॉन्सेप्ट सेलिंग करें, बिकॉज नाउ यू ऑल नो, राइट? जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, देर आर सो मेनी बेनिफिट्स टू इट. इंपॉर्टेंटली, यू नो, मेरा रिस्क डाइवर्जन हो जाता है, अफोर्डेबिलिटी है, कन्वीनियंस है. अफोर्डेबिलिटी एज इन मैं जितना चाहूँ उतना इन्वेस्ट कर सकती हूँ, राइट? कम से कम अमाउंट भी. लिक्विडिटी है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट है, बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं, राइट? अब क्यों हम एसआईपी की बात कर रहे हैं, या क्यों हम इनको एसआईपी पिच करना चाह रहे हैं? बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल. ओके, व्हाई? बिकॉज फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स दैट इट हैज टू ऑफर. क्या है वो बेनिफिट्स? ऑब्वियसली एसआईपी इज वन ऑफ द टूल विच इज गिविंग मी रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट. इट इज हेल्पिंग मी टू क्रिएट वेल्थ थ्रू स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स, राइट? डिसिप्लिन एंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है, राइट? मुझे पता है कि बॉस हर महीने ना मेरे अकाउंट से इतना अमाउंट जो है वो डेबिट होने ही वाला है. सो व्हाट हैपेंस इज आई स्टार्ट कर्टेलिंग. मैं जो अपने खर्चे है ना उसको कम करने लग जाती हूँ. व्हाई? बिकॉज आई नो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो मेरे अकाउंट में इस तारीख को हिट करने ही वाला है, राइट? एंड आई कैन नॉट लेट दैट अमाउंट गेट बाउंस, बिकॉज अगेन उसका जो बाउंसिंग जो बाउंस चेक्स होते हैं, या जो बाउंस ईएमआई या जो बाउंस ईएमआईज होते एसआईपीज होती है, उसका इफेक्ट मेरा सीधा सीधा सिबिल स्कोर पे पड़ता है, राइट? इंपॉर्टेंटली मेरी जो इतनी बिजी लाइफ चल रही है, राइट, उसमें से भी अगर आप मुझे ये भी बोलोगे कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करो और उस पर डे टू डे ध्यान रखो, तो इवन दैट इज नॉट पॉसिबल. इवन दैट इज टेकन केयर बाय द म्यूचुअल फंड्स. Obviously, we all know professional management by experts, and the most unique and different benefit that I have, it is the benefit of compounding, right? अब ये तो सब आप सब जानते हैं, right? अब ये हो गया कुछ बुकिश नॉलेज. Now guys, if I have to ask you, okay, ये सब क्यों करना है मुझे? Anybody? ये सब क्यों करना है मुझे? सी लाइफ में ना एक चीज है जो हम सब चाहते हैं, राइट? फ्रीडम. कौन कौन चाहता है फ्रीडम इन लाइफ? क्या आप लोग फ्रीडम चाहते हो? ओके, रिजा सेज मी. ओके, एनीबडी एल्स? बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रीडम? कोई बता सकता है? फ्रीडम का मतलब क्या है? राइट, फ्रीडम तो बॉस हम सबको चाहिए, बट फ्रीडम का मतलब क्या है? ओके, सो ओलंपिक सेज यस, बट मिलना मुश्किल है. यस, फ्रीडम का मतलब वरी फ्री. वरी फ्री मैं तभी हो सकती हूँ, ओके, वरी फ्री मैं तभी हो सकती हूँ, ओके, व्हेन आई हैव मनी विथ मी, राइट? तो आज के टाइम पे अगर मुझे फ्रीडम देखना है, तो फ्रीडम का मतलब क्या है कि बॉस मेरे पास ना फ्रीडम इज इनकम्प्लीट अनटिल अनलेस आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. आई से मुझे फ्रीडम चाहिए, ठीक है? मेरे लिए फ्रीडम है कि भाई कहीं भी जाओ, कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, राइट? खुशियां ही खुशियां. मोहम्मद साहबुद्दीन ने कहा है खुशियां ही खुशियां, राइट? ठीक है.
लेट अस से आपको ये खुशियां ही खुशियां तो मिल गई, आपके घर वालों ने बोला, आपने बोला मुझे फ्रीडम चाहिए, घर वालों ने बोला भाई ले बेटा अपना बैग ले और जा। ओके, wherever you want to go, go, we will never ask you when are you coming back, या कुछ भी नहीं पूछेंगे तुमको, ठीक है। बैग तो दे दिया उन्होंने, कपड़े लत्ते, ठीक है, चलो 10 दिन का खाना पीना भी दे दिया, लेकिन उसके साथ ना बस पैसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। क्या मेरी फ्रीडम आज भी फिर वो मायने रखती है अनटिल अनलेस मेरे पास पैसे नहीं है। सो आज के टाइम पे ना गाइस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अनदर क्लासिक एग्जांपल आई विल गिव यू। ओके, ठीक है, सी अब आप लोग को वो टाइम था जहां पे ये जो रिटायरमेंट एज होती थी ना, ये डिफाइंड होती थी, राइट। पहले रिटायरमेंट की एज क्या होती थी? 60, 65, राइट। जब ये एज आती तो पब्लिक बोलती थी अरे अब ना मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है। ओके, नाउ लिसन टू माय क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर। ओके, क्या आज के टाइम में भी, ओके, डू वी स्टिल हैव एज एज द रिटायरमेंट फैक्टर? ओके, अरुणिमा सेज नो। क्या आज भी एज डिटरमाइन करती है कि क्या मैं रिटायर हो सकती हूँ या रिटायर नहीं हो सकती हूँ? Okay, I'll ask you one very simple question. Okay, let us say, okay, and ये सब ओरिजिनल है, अज्यूम करना है, ठीक है। आपके पास somehow, okay, yes, no age bar for him, right? Okay, but then what? Let's say आज आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाते हैं। Okay, today you get क्रेडिट ऑफ 10 करोड़, ठीक है, सब लीगल है, सब लीगल है। अभी हम लोग इसके ऊपर और कोई स्टोरी नहीं बिल्ड करते, सब लीगल है, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो कल दोबारा बैग उठा के विल लाइक टू गो टू योर वर्क? 10 करोड़ है अकाउंट में। Okay, so we are getting a mixed answer here, right? I will go, I will not go, right? See, understand now, if this is our line of business, okay, this is our line of business, then probably I have that chance of yes, मैं जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, मेरा ही business है types, right? But if you are a working professional, how many of you will actually like to go to office tomorrow? Nobody, guys. Nobody. Until unless you are so passionate about working, right? किसी को भी नहीं जाना होगा। हाँ, अगर आप में पैशन है तो आप बोलोगे। Okay, now Manoj Kumar has a very interesting question for me. How to grow 10 crore to more? अरे मनोज, पहले 10 करोड़ आने तो दो, फिर हम लोग उसको ग्रो करेंगे। रुक जाओ भी, 10 करोड़ मैंने क्रेडिट भेजा नहीं अभी आपको, रुक जाओ, ठीक है, फिर हम लोग उसको ग्रो करने की बात करेंगे, ठीक है। बट द पॉइंट हियर इज गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इट हियर इज, it is no, age is no more relevant, right? Whether I want to happily retire or not. आज को अगर मेरे अकाउंट में बस 10 करोड़ रुपए है ना, तो I am happy, willing to retire. But let's say I am 58 and still मेरा जो पैसा है वो इतना आ रहा है कि मेरी सैलरी आती है, ईएमआई निकल जाते हैं, घर के खर्चे निकल जाते हैं, और एक जो पर्सनल लोन लिया था ना, उसका ईएमआई देने में निकल जाते हैं, right? Am I still ready to retire here? हाँ, am I still ready to retire here? एज आ गया ना मेरे पास, बट क्या मैं रिटायर हो सकती हूँ? जी नहीं, मैं रिटायर नहीं हो सकती। वाई? बिकॉज आज के टाइम में वो फैक्टर ही नहीं बचा है जहां पे एज डिसाइड करती है वेदर आप रिटायर हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। बस इट इज द मनी दैट विल डिसाइड वेदर यू कैन रिटायर और यू कैन नॉट रिटायर। ओके, अगर आपके पास नहीं है ना फाइनेंशियल बैकअप, तो बस ये थॉट भी नहीं आएगा आपके दिमाग में, बिकॉज यू नो द वेरी नेक्स्ट डे आई हैव टू पिक अप माई बैग एंड गो टू वर्क, राइट, सो दैट मेरा जो पैसे का इनकमिंग है वो चलता रहे। नाउ आई एम श्योर वी स्टिल हैव लॉट ऑफ आवर कस्टमर्स, राइट, जिन्होंने आज भी
अभी तक अपना कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है। वाई? बिकॉज कहीं ना वो ये महीने का जो इनकम है वर्सेस एक्सपेंसेस है ना, इसका जो ये जिक्सो पजल है ना, उसी में खोके रह गए। दे स्टिल डोंट नो, एंड दैट इज वेयर यू, मी एंड आवर एंटायर टीम प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? तो अगर हमको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, सबसे पहला हमको ये समझना जरूरी है कि राइट इनकम ब्रेकअप क्या है बॉस आपका, राइट? तो हमने क्या किया है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ओके, फर्स्ट, वॉट एवर इनकम आई एम गेटिंग पोस्ट डिडक्शन ऑफ माई टैक्स, ओके, जो मेरा टेक होम है, जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होती है, वो अमाउंट का 50% आई हैव टू एलोकेट टुवर्ड्स माई असेंशियल्स। ओके, अब जब मैं असेंशियल्स की बात करती हूँ, मेरे असेंशियल्स में क्या क्या सारी चीजें आ जाती है, मेरा ईएमआई, ग्रोसरी, रेंट, इंश्योरेंस, आने जाना, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, 50% I will allocate towards my essentials. Okay, 20% I will have to allocate towards leisure because we Indians, right? अभी आप लोग भी देखोगे, आई थिंक अब कितना, अब मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने बचे। ओके, एक बार हमारा जब ये रक्षाबंधन हो जाता है, उसके बाद तो मतलब अगले साल तक हमारी त्योहारों की बैक टू बैक लिस्ट रहती है, राइट? और हर त्योहार में वी स्पेंड अच्छे से, स्पेशली फॉर फेस्टिवल्स लाइक गणपति, दुर्गा पूजा, नवरात्रे, दिवाली, न्यू ईयर्स भी आज के टाइम पे अपने लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल बन गया। हम तो ईद भी मना रहे हैं, क्रिसमस भी मना रहे हैं, सब कुछ मना रहे हैं हम लोग, राइट? एंड there is a certain percentage that I allocate towards it, and 30% is what mandatorily I have to allocate towards my investments, right? ओके, अगर मैंने ये सिंपल लॉजिक भी अपने लाइफ में इम्बाइब कर लिया ना, ट्रस्ट मी, आवर लाइफ विल बी मच बेटर, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू, और आई एम श्योर कि आप लोग ये बात करते ही हो लोगों से, राइट? बट before, my only question is, before we go and talk about this, or before we go and preach this to our customers, it is very very important to ensure that you and I, we are practicing this, right? We are practicing this, because अगर हम ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और प्रीच कर रहे हैं, देन जो अपने को कन्विक्शन चाहिए ना, वो कन्विक्शन कभी आएगी नहीं, राइट? सो सिंपल है, 50-30-20 रूल हमको ये करना है। अब इसके अलावा, okay, it is very very important that we all save, we all should have a contingency fund, राइट? अब कंटिजेंसी फंड का आइडिया तो आप सबको होगा ही कि कंटिजेंसी फंड क्या है, राइट? अब अक्सर हम सोचते हैं, अगर हम कंटिजेंसी फंड की बात करें, तो एक तो है कि भाई इसमें कितना पैसा होना चाहिए। ओके, इट इज आइडियली 6 months ऑफ योर एसेंशियल एक्सपेंसेस। अगर मैं ये पिछली वाली स्लाइड पे जाऊं, ओके, एंड लेट अस से मेरा जो पोस्ट टैक्स इनकम है 1 लाख रुपए है, ओके, देन 50,000 मेरा कहाँ पे जा रहा है? मैं 50,000 इज गोइंग टुवर्ड्स माय एसेंशियल्स। ओके, 20,000 मैंने अपने त्योहार और ट्रैवल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक ट्रैवल, वॉटेवर है, उसके लिए सेव किया, और महीने का 30,000 का मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। अब अगर मैं बात कर रही हूँ कंटिजेंसी फंड की, तो 6 महीने का एक्सपेंसेस मेरा मैनेज हो पाए, इतना मेरा कंटिजेंसी फंड में होना चाहिए। सो 50,000 into 6 is how much? 3 lakh rupees at any point of time should be there in my contingency fund. Okay, ये तो बुक्स कहती है, ओके, ये तो बुक्स कहती है, राइट? बट गाइस, व्हाट इज द रियलिटी? क्या हम लोगों ने इसका इंतजाम करके रखा हुआ है? इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, राइट? अभी बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं हम लोगों को कोविड से बाहर आए हुए, राइट? That is the time where we realize कि बॉस ये कंटिजेंसी फंड होना कितना जरूरी है। ओके, कितना जरूरी है ये। इट कैन हेल्प मी टेक केयर ऑफ माई एक्सपेंसेस, ओके, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसीज, इन केस ऑफ जॉब लॉस, एट एनी गिवन पॉइंट जहां पे मेरी जो रेगुलर इनकम बंद हो जाती है ना, दैट इज वेयर, ओके, अगर मेरा कंटिजेंसी फंड है ना, तो आई गेट दैट टाइम फ्रेम, टू थिंक एंड बिल्ड अप अगेन, राइट? आज तो चलो विद गॉड्स ग्रेस, टचवुड, हम सब बिजनेस में हैं। ओके, जस्ट इमेजिन कि हम जॉब में हैं, हम सर्विस में हैं, राइट? एंड ये हुआ है कि मेरा ड्यू टू सम रीजन आई एम नॉट लाइकिंग माई जॉब, आई एम नॉट लाइकिंग इट, मुझे पसंद नहीं है यहाँ पे आना, ठीक है? क्या मैं कल के कल अपना जॉब छोड़ के घर बैठ सकती हूँ?
इफ आई एम अ पर्सन जिसके ऊपर है फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, कैन आई लीव माई जॉब एंड सिट होम? आई कैन नॉट डू दैट, राइट? बिकॉज आई नो कि बस अगर मेरी इनकमिंग बंद हो गई ना, तो जो मेरे मंथली क्रेडिट्स है, जो मेरे ईएमआई जाने हैं, उसका क्या? हु विल टेक केयर ऑफ दैट? वहीं पे अगर मेरा कंटिजेंसी फंड अवेलेबल है, आई नो ओके यू नो दिस इज दैट 6 months का टाइम विच आई हैव, विच आई कैन लुक फॉर अ बेटर रोल, बेटर प्रोफाइल फॉर माई सेल्फ विद बेटर ग्रोथ, राइट? एनी इमरजेंसीज इन लाइफ, गाइज, मैंने आपको कोविड का भी एग्जांपल दे दिया, राइट? सो दैट इज वेयर वी से द कंटिजेंसी फंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, नाउ दीज आर सम ऑफ द बेसिक इन्वेस्टमेंट जहां पे हम ये कर सकते हैं, राइट? नाउ दिस इज समथिंग यू नो दैट वी टॉक टू पीपल, ओके, कि एनुअल पोस्ट टैक्स इनकम कितना होना चाहिए? अज्यूमिंग मेरा पोस्ट टैक्स इनकम है 4 लाख रुपए, और हम बात करें अगर 30% इन्वेस्ट करने की, तो 1,20,000 अगर पूरे साल में इन्वेस्ट करना है, यानी मंथली 10,000 रुपीज, अगर बंदा 10,000 रुपीज भी इन्वेस्ट करता है, तो आई कैन हैव एटलीस्ट 2 to 3 डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स फॉर दैट पर्टिकुलर गाय, राइट? अब इसको सिंपल से ऑब्वियसली यू नो यू कैन जस्ट कंपेयर इट विद अदर एवेन्यूज दैट आर अवेलेबल। एफडी बनाऊं हर महीने की, पॉसिबल है, बट क्या मुझे वो रिटर्न्स मिलेगा? द आंसर इज नो। कैन आई डू इन स्टॉक इन्वेस्टमेंट? अगेन, क्या 10,000 में मुझे सेंसिबल स्टॉक इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ऑप्शंस मिलेंगे? द आंसर आज के टाइम पे, द वे मार्केट इज गोइंग, डेफिनेटली नो। सो देन व्हाट इज द आइडियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम? Invest into mutual funds, okay, wherein with as minimum as 10,000 also he can you know get his risk divided into 2-3 options, right? अब जब हम बात करते हैं कि एसआईपी किस में होनी चाहिए, ये अपने पास कुछ ऑप्शन है जो हमने फर्स्ट स्क्रीन में भी देखा, राइट? अब कहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? इक्विटी मार्केट्स, इक्विटी फंड्स, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एपिटाइट ऑफ द इन्वेस्टर। है बंदा रिस्क लेने के लिए तैयार? ऑब्वियसली इफ आई एम समबडी हु वांट्स अ ग्रोथ एट अ हायर पेस, ओके, एंड आई वांट टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मे बी यू नो इक्विटी मार्केट्स या इक्विटी फंड्स में मैं इन्वेस्ट करूं, और एल्स डेफिनेटली यू नो आई कैन गो टुवर्ड्स बैलेंस्ड और डेट फंड्स, राइट? अब अगर मुझे बात करनी है इन्वेस्टमेंट की, राइट, अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, दिस इज यू नो हाउ डू आई आइडेंटिफाई माई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी? इफ आई एम यू नो कंजर्वेटिव काइंड ऑफ अ कस्टमर इन्वेस्टर, डेफिनेटली मेरा डेट एक्सपोजर हायर रहेगा, ओके? आई एम समबडी हु सेज नहीं, आई कैन प्ले विद इक्विटी एंड डेट, देन मेरा मॉडरेट रहेगा। एंड डेफिनेटली अगर मैं अग्रेसिव हूँ, प्रोफेशनल हूँ, एम्बिशियस हूँ लाइफ में, माई इक्विटी एक्सपोजर विल बी हाई, राइट? ओके, नाउ कमिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कि भाई हम एसआईपी को पिच कैसे करें, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत सिंपल कैलकुलेशंस मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे दिखाए हैं आपको, ओके? नाउ दिस इज हाउ द एसआईपी वर्क्स, यू ऑल नो। महीने का 5,000 का रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट है, ओके, थ्रू आउट द ईयर 60,000 हो जाता है, बेसिस विच हर महीने मुझे एनएवी के बेसिस पे मुझे यूनिट्स अलॉट होते हैं, पूरे साल में वो मेरे क्यूमुलेटिव यूनिट्स देखे जाएंगे, एंड एट द एंड होगा मेरा फंड वैल्यू डिक्लेयर, राइट? दिस इज अ टिपिकल एसआईपी, ओके? अब हम इसमें और सारी चीजें ऐड करते हैं, जहां पे वी डू द कॉन्सेप्ट सेलिंग फॉर द इन्वेस्टर, ओके? अब एसआईपी की अगर हम बात करते हैं, सो दीज आर फ्यू ऑफ द एसआईपीज, ठीक है? अब सबसे पहले, ओके, आवर फोकस शुड बी to sell SIPs that are perpetual in nature. Why perpetual? Can anybody tell me? Why perpetual SIPs? एक तो ऑब्वियस है कि आपको यू नो आपको ये कस्टमर के दिमाग में डालना पड़ेगा, बट जहां पे आप बात करते हो, ठीक है, देर इज ऑलवेज अ टेन्योर दैट वी टॉक अबाउट, सर 3 साल, 5 साल, 7 साल, राइट? नाउ अगर हमें ये परपेचुअल एसआईपी करनी है, तो हम क्या करें? What do you think? What is better? Tenure specify होना चाहिए या perpetual होना चाहिए? Anybody? Okay, क्या होना चाहिए? 15 years. Okay, Balaram says 15 years. Tenure. Okay. Anybody else?
Guys, I'll tell you simple thing, whenever we are talking to customers about such kind of thing, it is always important that you share your own examples. Okay. If I have to share my example with you, okay, all the SIPs that I have, these are the perpetual SIPs that I have kept. मैंने अपनी सारी SIPs ना perpetual रखी है. You know why? Because see, how many of you have ever read or heard anything about behavioral finance? आप में से कितने लोगों ने बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर कुछ पढ़ा है या कुछ रखा है? गाइस, व्हाट हैपेंस इज जब हम इस पे टर्म लगा देते हैं ना कि 10 साल करना है, 10 साल अगर मुझे करना है, देन यू नो व्हाट हैपेंस, इट इज लाइक मैं एक बाउंड्री सेट कर रही हूँ उसके लिए ना. बाउंड्रीज को ना दो तरीके से लिया जाता है. एक तो बंदा बोलेगा यार मैं डेडिकेटेड हूँ, 10 साल मुझे करना है, बट इन मैक्सिमम केसेस यू नो व्हाट इज द फीलिंग पीपल हैव कि अरे बाप रे ये मुझे 10 साल तक करनी है. राइट? एंकर, वेरी गुड विश्वप्रिया. ओके, अब ये जो 10 साल या 15 साल है, ये क्या क्या है, ये आपने मेरे दिमाग पर एंकर डाल दिया. सो नो मोर एज इन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा अब ना मुझे ये बर्डन लगने लग गया है. इन्वेस्टमेंट से ज्यादा अब मुझे ये बर्डन लगने गया बिकॉज आपने इस पे 15 साल डाल दिए. ठीक है. आई फॉलो वन सिंपल रूल, इवन व्हेन आई एम टॉकिंग टू माय पीपल, कि भाई जब तक आपका पैसा आ रहा है ना, आपकी SIP चलने दो. जब तक आपका पैसा आ रहा है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वॉट एवर, जस्ट डोंट पुट एन एंड डे. वाई? बिकॉज टच वुड, until unless there is no medical emergency, आपका काम तो चलते रहना है. राइट? जब आपका काम चलते रहना है, आपका इनकमिंग अगर आ रहा है, दैट मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट भी होना ही चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी कंटिन्यू होना ही चाहिए. सो दैट इज वेयर वी टॉक अबाउट परपेचुअल. ठीक है. अभी ट्रिगर और फ्लेक्सिबल को फिलहाल के लिए साइड में रख देते हैं. आवर फोकस इज ऑन परपेचुअल एंड टॉप अप. ओके. नेक्स्ट थिंग इज व्हाई टॉप अप. बस बात सिंपल है ना. आप, हमारा एज बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, तो क्या मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ना चाहिए? द आंसर इज यस. कैसे बढ़ना है, कितना बढ़ना है, ये हम लोग देखते हैं. ठीक है. अभी तक एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? ओके, ग्रेट. चलो, गोइंग फॉरवर्ड नाउ लेट अस सी. दो तरह की SIP पे हम फोकस करेंगे. एक है सिंपल SIP और एक है टॉप अप SIP. ओके. नाउ लेट अस सी वेल्थ क्रिएशन थ्रू सिंपल SIP. ओके. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके. नाउ while you're talking with the customer, it is important कि हम उसके holistic plan बताएं. ठीक है ना. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हम बात कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन थ्रू सिंपल SIP. ओके. अब हम बताते हैं इसमें कि कैसे आपका जो पैसा है वो ग्रो करेगा. ठीक है. ऑल्सो वाइल यू आर डूइंग दिस, ऑलवेज रिमेंबर कि एज पर द न्यू सेबी गाइडलाइंस हम कस्टमर को 8 से 12% बता सकते हैं. ठीक है. बट सिंस यू गाइज आर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स, ओके, हम यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं. प्लस द PPT इज अ लिटिल ओल्ड ऑल्सो. ठीक है. अब सिंपल SIP के थ्रू वेल्थ क्रिएशन कैसे हो सकता है भाई? ठीक है. सिंपल है. व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज 10,000 रुपीज एवरी मंथ. अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे अलग अलग टेन्योर डिसाइड कर दिए. 3 साल, 5 साल, 10, 20 और 30 साल. ओके. लेट्स से 3 साल तक अगर आप SIP करते हो, इट इज ऑल अबाउट प्लेइंग विथ नंबर्स. हाँ. और आप ही अपना सिंपल टाइम वैल्यू मनी के फॉर्मूलाज आप सबको आते ही होंगे. एक्सेल पे आप सिंपली अपने कस्टमर को करके उनके सामने एक्सेल पे सारा डेटा फीड करके ये आउटपुट उनको दिखा सकते हो. राइट? अब 3 साल में अगर आप 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स व्हाट इज द अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग? इट इज 3,60,000 रुपीज. राइट? अब अगर यही आपका जो टोटल पैसा है, आपका जो कॉर्पस अगर 8% पे ग्रो करता है ना, तो आपका जो टोटल कॉर्पस बनता है फ्रॉम 3,60,000 इट रीचेस अप टू 4,06,000. ठीक है. दैट मीन्स बाय 8% इन 3 years आपने कितना बेनिफिट बनाया? 46,251. अब रिमेंबर वन थिंग. ओके. SIP में हमको बेनिफिट मिलता है कंपाउंडिंग बेनिफिट.
कंपाउंडिंग बेनिफिट की हम बात करें तो ये कैसा लेता है, इट टेक्स फ्यू इयर्स टू एक्यूमुलेट, बट जब ये ग्रो होना स्टार्ट करता है ये ड्रास्टिकली ग्रो होता है। आपने वो फेंशुई वाला बैम्बू प्लांट देखा है, बहुत सारे लोग अपने ऑफिस में, अपने डेस्क पे, अपने घर पे रखते हैं। सो वो जो बैम्बू प्लांट होता है ना, वो कुछ वक्त लेता है ग्रो करने में, 3 से 4 साल लेता है वो ग्रो करने में। ओके, बट एक बार जब वो ग्रो करने लगता है ना तो बहुत क्विकली वो ग्रोथ पकड़ लेता है, राइट। मैंगो ट्री, मैंगो का सीजन चल रहा है, क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, राइट। इट टेक्स ऑलमोस्ट 5 years फॉर अ मैंगो ट्री टू गिव फ्रूट्स, राइट। बट वो 5 साल के बाद वो जितना फ्रूट्स देता है, जितना मैंगोज वो देता है, लोगों का बड़े बड़े बिजनेसेस चलते हैं वो फार्म से, राइट। वी ऑल नो कितने बड़े बड़े बिजनेसेस है ये। तो it is also the same thing. Compounding will take some time, but when it starts giving you the benefit is something that the other products cannot match. Okay. अब ये तो हो गया आपका 8% 3 साल पे। ओके, यही 3 साल पे अगर आपका पैसा ग्रो होता है 12%, देन 3,60,000 से आपका कॉर्पस कहाँ जाता है, 4,30,000 पे। दैट मीन्स आपने बेनिफिट कितने बना लिए, 70,000 के बेनिफिट बना लिए हैं, ठीक है। मैंने तो एक और नंबर दे दिया, 16% भी दे दिया यहाँ पे, राइट। ओके, अब ये जो है अगर 16% पे मेरा पैसा ग्रो होता है, दैट मीन्स 3 साल में मैंने कितने पैसे बना लिए, 96,000 रुपीज। ओके, नाउ अब सी आई हैव माई ओन इंडिविजुअल पोर्टफोलियो, आई हैव सीन माई मनी ग्रोइंग इन लास्ट 1 year, राइट। ये जो अभी मैं आपको कोट कर रही हूँ 3 साल, हम सब जानते हैं कि इतना पैसा तो इवन इफ आई हैव टू टेक 96,000, उससे ज्यादा मेरे पोर्टफोलियो ने बना लिया है इन दिस 1 year। उससे ज्यादा नहीं, उससे कई ज्यादा मैंने बना लिया है, राइट। हाँ, सो दैट इज हाउ द म्यूचुअल फंड ग्रोज। ओके, अब तो ये बात हो गई 3 साल। एनीवेज सर, आप भी इतनी मेहनत लोगे नहीं किसी के पास जाके केवल 3 साल के लिए बात करने की, राइट। और 3 साल का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ही नहीं, राइट। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट परपेचुअल। अज्यूम that the investment continues for 30 years. Okay, again मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरी कितनी हो गई, 3,60,000 हो गई इन 30 years, राइट। नाउ मेरा जो टोटल कॉर्पस बना है, ओके, मेरा जो टोटल कॉर्पस बना है, दैट इज मेरा जो टोटल कॉर्पस बना है, दैट इज 1,41,00,000। ओके, दैट मीन्स 1,05,00,000 का तो मैंने गेन बना लिया है, दैट टू एट 8%। अगर मैं 12% पे इस अमाउंट को देखूं तो मेरा कॉर्पस 36 लाख रुपए से बढ़ के 3,08,00,000 पे हो जाता है। दैट मीन्स मैंने गेन कितने बनाए हैं, 2,72,00,000 के मैंने गेन्स बनाए हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं, लेट्स से थिंग्स आर गोइंग गुड, विच इट विल ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। अगर मेरा पैसा ग्रो होता है 16% पे, मेरे 36 लाख बन जाते हैं 6.9 crores, राइट। दैट मीन्स द गेन्स दैट आई हैव मेड, कितने का गेन हो गया मेरा, 6.5 करोड़ का गेन हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years। एंड ट्रस्ट मी, ये मैं बता रही हूँ केवल 10,000 की, राइट। वी ऑल नो दैट द आइडियल इन्वेस्टर्स, okay, invest a very good amount of SIPs. In fact, I have met so many of a great distributors जो मुझे कहते हैं कि मैम 25-30 हजार की SIP के नीचे तो हम लेते भी नहीं है। ओके, उन्होंने अपना खुद का एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है। नाउ जस्ट इमेजिन, एक बंदा अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है 30 सालों के लिए, तो वो यहाँ पे पहुंच सकता है। इसका दूसरा कैलकुलेशन भी होता है, राइट। जैसे मुझे किसी ने ये पूछा था कि कस्टमर ने बोला कि उसको 3 से 5 करोड़ चाहिए, राइट, लाइफस्टाइल मेंटेन बेटर करने के लिए। सो बस आई नो ना, अगर मुझे 3 से 5 करोड़ चाहिए, देन मेरा जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो महीने का कम से कम 50 से 60 हजार की मेरी SIP होनी चाहिए इन अ लेसर ड्यूरेशन। Am I able to, will I be able to achieve that objective? The answer is yes. तो इसीलिए मैंने कहा था, लेट मी जस्ट सी वो चैट में से मुझे वो सवाल किसके पास से आया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रोमा, आई थिंक वो रोमा का था ये सवाल। सॉरी, प्रतिमा थी, प्रतिमा थे। ओके, सो प्रतिमा, आई होप आई हैव आंसर्ड यू नाउ।
कि अगर आपका इन्वेस्टर इतना समझदार है, हु सेज कि मुझे 3 से 5 करोड़ रुपए चाहिए, देन ही ऑल्सो नोज कि बस 3 से 5 करोड़ रुपए पाने के लिए what is the kind of investment he has to do. And trust me guys, I have seen portfolios wherein people are investing almost a lakh rupees of SIP every month. Every month. आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों के पास होंगे ऐसे कस्टमर्स। आते हैं हमारे पास SIPs, हाई वैल्यू SIPs, राइट? ऑब्वियसली आते हैं। तो जो लोग हाई वैल्यू SIPs करते हैं उनका लॉजिक बहुत सिंपल है कि बस मुझे 30 साल तक इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आई वांट टू एंजॉय ऑल्सो। सो स्टार्टिंग के 10-15 साल में वो दबा के पैसे इन्वेस्ट करते हैं, दे गिव हाई वैल्यू SIPs, ओके, सो दैट उसके बाद इवन इफ आई एम नॉट विड्रॉविंग माई SIPs, ऑब्वियसली विड्रॉ करने का तो भाई अपने पास ऑप्शन नहीं, हम वो नहीं दे रहे। बट अगर 15 साल के बाद मैं चाहूं तो आई कैन स्टॉप माई SIP, बट स्टिल दैट माई मनी इज ग्रोइंग, राइट? एंड आई ऑलवेज से वन थिंग, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग व्हाट यू प्रीच। इससे पहले कि हम अपने इन्वेस्टर्स के पास जाएं और 1 लाख 1.5 लाख की बात करें, वी हैव टू सी आवर ओन पोर्टफोलियो। मेरे लिए तो आप लोग ही हो कस्टमर्स, राइट? अगर आप अपना पोर्टफोलियो बदल दो ना कल से, आई एम मोर देन हैप्पी, आई विल फील कि या मेरा ये सेशन सक्सेसफुल था। ठीक है ना? हम आर फोकस शुड बी कि बस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप इन्वेस्ट करो, ओके, लेट दैट मनी कीप ग्रोइंग, ओके। इसीलिए हम कहते हैं कि जब तक हम अच्छे से कमा रहे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा स्पेंडिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए, सो दैट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, मुझे क्या है, आई कैन स्टार्ट इंजॉइंग दोज थिंग्स इन माई लाइफ, ओके। आर यू ऑल विथ मी ऑन दिस? डू यू ऑल एक्सेप्ट कि हाँ ये एक लॉजिक सही है? आर यू ऑल विथ मी? अ क्विक यस और नो। मतलब ऑब्वियसली अगर कोई डिविएशंस होंगे तो भी यू आर मोर देन वेलकम, बट आई विल लाइक टू नो, यू थिंक ये अप्रोच सही है? दिस इज व्हाट वी शुड प्रीच एंड प्रैक्टिस, राइट? मैंने दोनों बोला है, प्रीच एंड प्रैक्टिस। प्रीच यानी आप अपने कस्टमर्स को बताओ, प्रैक्टिस यानी आप अपने लिए भी यही चीज को अपनाओ। बिकॉज जब हम अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जो कन्विक्शन हमारे में आता है ना, उस कन्विक्शन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आज आई एम टेलिंग यू, आई कैन बेट यू, आप में से कोई भी ना मेरे इस कन्विक्शन को चैलेंज नहीं कर सकता है कि नहीं मैम जो आप बोल रहे हो इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। I can prove it to you again and again. Why? Because I am doing this thing. And that is where I am so confident कि boss, these are the things that works. It is just that you have to keep doing it every day, every month, every year. Okay, that was about SIPs. अब हम बात करते हैं top up SIPs की. Okay, so guys, let us understand this logic. Okay, I know, it is almost 1 hour 10 minutes हमारे सेशन को होने आ रहे हैं. Okay, just give me few more minutes. Okay. अच्छा, अब हम बात करते हैं टॉपअप की। ओके, लेट अस से अब टॉपअप भी हमको कैसे करना है ये हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लेट अस से ये तो अपना सिंपल लॉजिक चल रहा है, हर महीने 10,000 की SIP चल रही है 30,000 की, सॉरी 30 सालों की। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि अपनी एज बढ़ती है, अपना इनकम भी बढ़ना चाहिए, एंड साथ में इनकम बढ़ रहा है तो बॉस आई वांट कि मेरा जो SIP है ना वो भी बढ़े, राइट? गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरी जो SIP है ना वो भी बढ़े, है कि नहीं? ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लाइफ में। एज बढ़ी, इनकम बढ़ा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहा। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ने की, टॉपअप SIP की, ओके, कितना SIP बढ़ाना चाहिए, कितना अमाउंट होना चाहिए टॉपअप? एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल मी, या आपको क्या लगता है व्हाट इज यू आइडियल कि इतना तो बढ़ना ही चाहिए? एनीबडी कुछ ऐड करना चाहेंगे आप लोग? 5%, ओके, अमित सेज 5%, 15, 20, अच्छा, और नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, 8.33% इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, ये कुछ तो बहुत बड़ा लॉजिक है, मैं समझना चाहूंगी बाद में। ठीक है, चलो, ग्रेट ग्रेट गाइस। अब हम ये सोच तो रहे हैं कि इतना परसेंट बढ़ना चाहिए, बट माय क्वेश्चन इज, क्या इतने परसेंट बढ़ाने के लिए कस्टमर रेडी हो जाता है? बिकॉज द मोमेंट यू गो एंड टॉक कि सर SIP का अमाउंट बढ़ना चाहिए, उसके मतलब ऐसे चेहरे पे लिख के आता है नो, राइट? नो, बट देन हाउ डू वी कन्विंस दैट पर्टिकुलर कस्टमर कि भाई टॉपअप तो आपका होना चाहिए? ओके,
सिंपल थिंग है, आपने जो भी आपकी एसआईपी चल रही है ना, केवल 5% ऑफ दैट, ओके, केवल 5% ऑफ दैट, ओके, बेयर मिनिमम, बेयर मिनिमम, ओके। आपकी एसआईपी है 10,000 रुपए की, 5% माने कितना हो गया, 500 रुपया, ठीक है। अब हम लोग ये प्रूफ करने के लिए ना इसमें एक और सवाल पूछ लेते हैं कस्टमर को। सर सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो 500 रुपया है इसका आज का वैल्यू क्या है, ये 500 रुपए का, राइट, क्या वैल्यू होल्ड करता है ये मार्केट में, ओके। सो यू से कि ऑब्वियसली कोई वैल्यू नहीं होल्ड करता। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि भाई आपने अपने बच्चे को दिया 500 रुपया, कल ही आया ना बोर्ड के रिजल्ट, राइट। हमने बोला जा बेटा एंजॉय कर, बोर्ड में तू भाई बोर्ड फाड़ के तुम मार्क्स लेके आए हो। आजकल के बच्चों के स्पेशली आईसीएसई बोर्ड आप देखोगे तो 90 के नीचे तो किसी के होते ही नहीं है। कल ही हमारे ऑफिस में हमारे एक कलीग ने मिठाइयां बांटी, उनके बेटे को 96% आया। मैंने कहा भाई 96 तो हमारे भी आते थे, 9th और 10th के मिला के आते थे, राइट। अब आपके बच्चे ने 96% ला दिया, हमने उसको बोला भाई 500 रुपए ले जा एंजॉय कर। बच्चा बच्चा मतलब बच्चे के पास तो कुछ बोलने के लिए भी नहीं है, आपको वो सिर्फ आपको एक लुक देगा, राइट, विच प्रूव्स दैट बॉस के 500 रुपए की वैल्यू आज के टाइम पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स द टॉप अप दैट यू आर डूइंग इज नॉट एट ऑल सिग्निफिकेंट इन टूडेज वर्ल्ड। बट अगर आप ये 500 रुपए को भी अगर आप टॉपअप करते हो ना, एवरी ईयर न्यू टॉपअप, तब वो आपके पूरे के पूरे फाइनेंशियल प्लान में क्या चेंजेस ला सकता है ये हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। लुक एट दिस केयरफुली, ओके। अब ईयर 1 में क्या था, मेरे पास मेरी एक 10,000 की एसआईपी थी, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ईयर 2 में एक और एसआईपी ऐड कर रही हूँ 500 रुपए की, ठीक है। तो इसका थोड़ा नंबरिंग का आप छोड़ देना, ठीक है। ईयर 2 में अब मेरे पास 2 एक्टिव एसआईपीज है, एक 500 रुपए की और एक 10,000 रुपए की, राइट। ईयर 3 में व्हेन आई गो, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास 3 एक्टिव एसआईपीज है, एक है 10,000 रुपए की और 500 रुपए की, 500 रुपए की 2 एसआईपीज है। एवरी ईयर आई नीड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू एसआईपी, ओके। इससे क्या होता है, मेरा एक तो एसआईपी काउंट भी बढ़ जाता है और वैल्यू भी बढ़ जाती है, ठीक है। एंड आई कीप कंटिन्यूइंग डूइंग दिस फॉर एंटायर 30 ईयर, सिंस ईयर वी आर टेकन अ 10 ईयर, विल टेक फॉर 30 ईयर। लेट अस सी कि बस ये 5% जो हम ऐड कर रहे हैं ना उसका क्या डिफरेंस आता है अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। लेट अस से एसआईपी अमाउंट है मेरी 10,000 रुपए की, टॉपअप मैंने किया है 500 रुपए का, ठीक है। और यहाँ पे टेन्योर मैंने लिया है 10, 15 और 30, ओके। एंड 500 रुपए का एग्जाम्पल दिया, 1,000 रुपए का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अगर मैं 10 साल भी ये 500 रुपए का टॉपअप करती हूँ ना, मेरा जो सिंपल एसआईपी है ना, जिसका ये था क्या कहते हैं अपना एसआईपी 10,000 की थी, उसका जो कॉर्पस है एट 8% ना, इट गोज टू 18,12,000 रुपीज। बाय डूइंग अ टॉप अप एसआईपी माय कॉर्पस इंक्रीजेस फ्रॉम 18 lakhs to 21 lakhs, यानी 3.5 लाख रुपए इसमें जुड़ जाते हैं। अगेन बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग, अब क्या बोलते हैं मुझे, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, राइट। अब ये हो गया 10 साल का 8% पे, 12% पे मेरा एडिशनल कॉर्पस कितना बनेगा, 4 लाख रुपए का, ठीक है। 16% पे अगर मैं लेती हूँ, 16% पे अगर मैं लेती हूँ तो 10 साल में 500 रुपए का एडिशनल टॉपअप करने से एडिशनल कॉर्पस कितना बन रहा है, 4,60,000 रुपए का। लेट्स से इफ आई कंटिन्यू दिस फॉर एंटायर 30 years by doing a top up SIP of 500 rupees every year, मेरा एडिशनल कॉर्पस कितने से बढ़ गया है, 65 लाख से। यानी एट 8% जहां पे मेरा कॉर्पस हो रहा था 1,41,00,000, अब वो टोटल कॉर्पस हो जाएगा 2,06,00,000, बिकॉज 65 लाख जो है ना वो मेरे टॉप अप एसआईपी ने ऐड किए हैं। अगर मैं 12% पे देखती हूँ तो ये सेकंड कॉलम आप लोग देखिए, मेरा जो सिंपल कॉर्पस जो 3,08,00,000 रुपए का बन रहा था, अब वो हो जाएगा 4,20,00,000 रुपए का। अगर 16% पे मैं देखूं तो मैं सिंपल एसआईपी का जो कॉर्पस था विच वाज 6.90 lakhs इज नाउ गोइंग टू 8.93 lakhs, यानी एट 30 फॉर 30 years एट 16% मेरा जो टॉप अप एसआईपी है वो मुझे कंट्रीब्यूट कर रहा है 2 करोड़ रुपए की। ये तो हो गया 500 रुपया। अगर वहीं पे मेरा 1,000 रुपए का टॉपअप जाता है, 1,000 रुपए की टॉपअप न्यू एसआईपी जाती है एवरी ईयर फॉर 30 years, I can have a corpus of 11 crore, guys. Now here, okay,
आई गिव इट अ वेरी स्ट्रेट डिस्क्लेमर, भाई 500 और 1000 रुपए का एग्जाम्पल तो हमने दिया है, राइट? आपके बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनकी एसआईपी चलती होगी 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए की। then accordingly you have to gauge that customer and pitch for a top up SIP। समझ रहे हो ना? now just imagine my dear friends कि अगर 500 या 1000 रुपए के टॉप अप करने से इतना डिफरेंस आ सकता है, तो अगर मैं ये वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूं, लेट्स से मैं टॉप अप ही मेरे कस्टमर का करवाऊं जिसकी 50,000 या 1 लाख रुपए की एसआईपी जाती है, नो टॉप अप ही मैं करवा दूं 10,000, 15,000, 20,000 का, देन जस्ट इमेजिन मतलब कितना मल्टीफोल्ड ये कैलकुलेशन होगा, राइट? एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कैलकुलेशन, सिंपल टाइम वैल्यू मनी के हिसाब से हमने ये पूरा के पूरा कैलकुलेशन निकाला, इवन यू कैन डू इट, राइट? ठीक है, यू अग्री? इज इट मेकिंग सेंस टू यू ऑल? मतलब ये फिगर्स अगर हम लोग खुद सोचे ना, तो मतलब ऐसा दिमाग घुमा देने वाले फिगर्स लगते हैं ये, राइट? सो नाउ यू सी अगेन एज आई से, मेरे लिए तो आप लोग ही कस्टमर है, इन्वेस्टर्स को क्या पिच करना है या आप लोग जानो, मैं तो आप लोग को पिच करूंगी कि बॉस touchwood, you guys have great incomes, please start investing in or putting money in your own top ups। आप अपने आप के लिए टॉप अप करो। जस्ट इमेजिन 500,000 रुपए का टॉप अप करने से इतना वेरिएशन आ रहा है, तो कल को अगर हम 10 या 15 या 20,000 का टॉप अप करते हैं तो क्या चेंजेस आएगा, राइट? नाउ रिलेट टू माई एग्जाम्पल, बस क्या कैन यू हेल्प मी ड्राइविंग अ मर्सिडीज इन नेक्स्ट 5 to 10 years? द आंसर इज yes, and this yes is a confident yes, right? ओके, कूल। एक लास्ट चीज के ऊपर हम आज बात करेंगे, विच इज कॉस्ट ऑफ डिले या कॉस्ट ऑफ पोस्टपोनमेंट। ओके, बिकॉज अभी तक का तो हमने पॉजिटिव सिनेरियोस ले लिया, राइट? वाइस वर्सा सिनेरियो ये हो सकता है कि जहां पे आपको कस्टमर बोले कि बॉस आप जो बोल रहे हो ना एवरीथिंग इज गुड, ओके, आई लाइक इट, बट बस चैलेंज है कि ये साल पैसा नहीं है, अगले साल, ठीक है? तो उसको भी हम कैसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? लेट्स से यू टॉक टू द कस्टमर, यू से सर वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट और नॉट इज टोटली योर डिसीजन, बट लेट मी जस्ट टेल यू कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन 1 साल से पोस्टपोन करते हो ना, तो क्या लॉसेस बुक कर सकते हो, ये हम देख लेते हैं। लेट्स से अगर आप 10,000 की एसआईपी करते हो 30 साल तक और 12% पे अगर ये ग्रो होता है, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 36 लाख का है, बट आपका कॉर्पस कितना हो गया? 3,08,00,000 रुपए का। सर इफ यू वांट टू डिले इट बाय 1 year, आई एम एब्सोल्युटली ओके, बट आई विल जस्ट लाइक टू हाईलाइट कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 29 ईयर तक चलता है ना, तो 1 साल इन्वेस्टमेंट ना करके आप कितना पैसा बचा लोगे? 1,20,000। 1,20,000 का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 10,000 इंटू 12 इज 1,20,000। बट ये लॉन्गर टर्म पे ये 1,20,000 की वैल्यू हो जाएगी 34 लाख रुपए। तो अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट डीले करते हो 1 साल से, आपका जो कॉर्पस है वो 3,08,00,000 से घट के 2,73,00,000 हो जाएगा, विच इज यू विल इनडायरेक्टली बुक अ लॉस ऑफ 34 lakhs। हाँ, you want to go ahead and delay it for 2 years, I am absolutely okay sir, because my point is to suggest इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना आपका चॉइस है। हाँ, बस मैं आपको ये बता दूं कि इफ यू वांट टू डिले योर इन्वेस्टमेंट बाय 2 years ना, आपका जो कॉस्ट ऑफ पोस्टपोनमेंट होगा वो होगा 64 लाख रुपीस का। हाँ, 2 साल में आप नहीं इन्वेस्ट करके बचाओगे कितना? 2,40,000। आइडियली वो 2,40,000 आप बचाओगे नहीं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं तो खर्च हो जाना है। हाँ, लेकिन इसका भुगतान आप कितने अमाउंट से करोगे? 64 लाख रुपीस से। एंड लेट मी टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली माय डियर फ्रेंड्स, ओके, हमने ये बहुत सारा ना अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ शेयर किया, एंड द फीडबैक दैट वी गेट इज कि मैम ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली वी आल्सो नो दैट, मतलब ये ऐसा कोई रामबाण नहीं है कि रातों रात सब कुछ बदल जाएगा ना आपके 100% कस्टमर बोलेंगे कि नहीं हमको पोस्टपोन नहीं करना है, बट एटलीस्ट द रेट ऑफ पोस्टपोनमेंट रिड्यूसेस। एंड जो बंदा ये नंबर समझता है ना, वो सोचेगा ठीक है यार, मतलब मैं मे बी पॉसिबल कि मैं 10,000 नहीं कर सकता हूँ, rather than completely delaying it for 1 or 2 years, what I will do is I'll reduce the amount। मैं 10,000 नहीं कर सकता, बट 5,000 तो मैं इन्वेस्टमेंट कर ही दूँ, राइट? सो दैट इज वेयर यू गेट द बेस्ट रिजल्ट व्हेन यू टॉक ऑन नंबर्स, ओके? इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट। अब मैंने आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा दिया है, राइट? अब जैसे जैसे पैसा आता जाएगा, आई एम श्योर दैट यू गाइज विल कीप इन्वेस्टिंग एंड योर इन्वेस्टर्स विल ऑल्सो कीप इन्वेस्टिंग, राइट?
what we need to focus is, okay, we need to focus is on high value SIP selling, because what happens is कई बार ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं कि छोटी वैल्यू की SIPs है ना जल्दी बिक जाती है, तो हम लोग ना वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। एंड ये आज सुबह भी मैंने अपने कलीग को यही चीज बोली है कि द मोमेंट यू गेट इनटू कंफर्ट जोन ना, यू आर रेस्ट्रिक्टिंग योर ग्रोथ। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी कि अगर आप एक बार कंफर्ट जोन में चले जाते हो ना, आप अपनी ग्रोथ को रोक देते हो, बिकॉज आपको लगता है कि अरे चल ना ठीक है, जो आसानी से हो रहा है वही कर लेते हैं, राइट? एनीथिंग दैट चैलेंजेस यू विल ऑलवेज पुश यू टू ग्रो, and that is what we need to do. Our focus should be selling high value SIPs, okay? And जितना जल्दी हम अपना फोकस हाई वैल्यू SIPs पे लाए, अपने लिए खुद का एक बेंचमार्क सेट करें ना, उतने ज्यादा सक्सेसफुल होंगे आप अपने पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में। Okay, so that was something, see, selling is something, you know, that we all do, but art of selling जो होता है ना, ये कुछ कुछ लोगों में आता है, and that is what we want to promote here, okay? Art of selling, you know, sale is a combination of art and science both, ठीक है? इसके ऊपर हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, ओके? बट टुडे आई हैव गिवन यू सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्प क्लियर टिप्स ऑन विच वी कैन सेल the products easily by doing the concept selling. Okay, so that is all from my side. Before we go ahead to the question and answer, may I please request you to share a one word feedback from your side on the session. Please share your feedbacks in the chat box. You think it is going to be relevant, you think you will you know, use this, and you know, बहुत simple चीजें हैं, but how it is all about, you know, hitting the right chord. Please share your feedbacks. Right, ma'am. So काफी अच्छे feedbacks आ रहे हैं, and what I really liked about today's session was the pace at which you were doing it. मतलब it was कि आप एकदम आराम से लोगों को समझा रहे हो, और लोग उतने आराम से समझ भी रहे हैं, और लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं आपके साथ में in the chat session. So before I move on to the Q&A part, ma'am, we have Priya with us, and I have requested Priya to talk about Bandhan funds as well. So ma'am, अगर आप मुझे host बना दोगे, तो I'll be able to share the screen, and then maybe Priya ma'am can talk about how Bandhan funds are doing. Right, just a minute. Thank you so much, Meenakshi, for a lovely session. Thank you, Priya. So Hitesh, I'm making, मुझे host प्रिया को बनाना है, हितेश को बनाना है? मुझे बना दो, आप हितेश को ही बता दो। Okay, done. And good evening, everyone. So यहाँ पे बहुत लोग मुझे जानते हैं. My name is Priya Jain, and I am your relationship manager for from Bandhan. So आप लोगों में से काफी लोगों से मेरा मिलना होता है ऑफिस में, और काफी लोगों से मिलना होता है सेशंस के दौरान. So मीनाक्षी मैम ने तो बहुत अच्छे से हमें बता दिया कि क्या बेचना है, कैसे बेचना है, क्यों बेचना है, क्यों सेलिंग म्यूचुअल फंड इज इम्पोर्टेंट. अब मेरा काम तो यहाँ पे यही है आप लोगों को बताना कि बंधन में आपको एक्चुअली सेल क्या करना है. सो आप लोगों से काफी अच्छा हमें यू नो सपोर्ट मिलता है. हमारे काफी फंड्स में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करवाया है और काफी चल भी रहा है. सो अभी हमारा इनोवेशन फंड जो हुआ था वो एक ह्यूज सक्सेस था आप लोगों के हेल्प से. एंड इसके अलावा जो फंड्स आज हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा स्मॉल कैप फंड. सो SIPs में मेजरली जो देखा गया है, आप सब इन्वेस्ट जो कर रहे हो SIP के मोड में, स्मॉल कैप फंड इज अ वेरी गुड फंड टू एंटर इनटू. हमारा जो रिटर्न्स है एक साल का, दैट इज 72%. एंड एक साल की जो हमारी रैंकिंग है, हम 34 फंड्स में से टॉप रैंक में फॉल कर रहे हैं. सो आने वाले टाइम पे भी वी होप टू डिलीवर द सेम काइंड ऑफ रिटर्न्स. अपार्ट फ्रॉम बंधन स्मॉल कैप फंड, हमारा कोर इक्विटी फंड भी आप देख सकते हो. इट इज अ लार्ज एंड मिड कैप फंड. सो मेजरली अभी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में ज्यादा है यहाँ पे, और थोड़ा पार्ट मिड कैप में और कुछ पार्ट स्मॉल कैप में डाइल्यूट किया हमने. इसका भी अगर आप परफॉर्मेंस देखो, सो 1 ईयर में अगेन वी आर at the third position out of 28 funds. And since inception return अगर आप देखो, तो since inception हम 8वें नंबर पे है out of 16 funds.
अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा स्टर्लिंग वैल्यू फंड है वहाँ पे आप सबने काफी इन्वेस्ट किया है एंड आई होप आगे भी जाके आप इस फंड पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट रखें. बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड इज अ फंड जहाँ पे हम वैल्यू कैटेगरी पे इन्वेस्ट करते हैं एंड इट इज अ लार्ज कैप बायस्ड फंड. And Bandhan Flexi Cap Fund and Bandhan ELSS Tax Saver Fund. These are the other two funds that we recommend from our part. So I hope आप सब यहाँ पे investments continue रखो और आपके clients returns बनाते रहे जिस हिसाब से वो कर रहे हैं. So that's it from my side. Anything on the lump sum investments, ma'am? आप multi asset के बारे में बोल दो. So multi-asset fund is a relatively new fund जो हमने अभी लॉन्च किया था in the month of December और वहाँ पे भी NFO के टाइम पे काफी अच्छा सपोर्ट मिला था आपके टीम से. So multi-asset is basically जहाँ पे हम लोग डाइवर्सिफाई करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट्स. हमने यहाँ पे 3 asset classes में अपने 3 asset classes पे we are investing आपका इक्विटी डेट और हम लोग गोल्ड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. So इसका भी अगर आप रिटर्न देखोगे since inception we have delivered 10% kind of return and आने वाले टाइम पे भी we would be doing good in this fund. And apart from that जो एक फंड आप लोग SIP पे और फोकस कर सकते हो जो हमने अभी इनोवेशन फंड लॉन्च किया था. So innovation is actually a concept जहाँ पे आप SIP पे इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो. जो SIP इन्वेस्टमेंट अपने करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो SIP इन्वेस्टमेंट कुछ पार्ट हम यहाँ पे अपने इनोवेशन फंड पे डाल सकते हैं बिकॉज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी किसी से छुपी हुई नहीं है और जो ग्रोथ है जिस हिसाब से ग्रोथ चल रहा है वहाँ पे हम अगर इनोवेट नहीं कर रहे हैं सो वी आर ऑल्सो लैगिंग. सो इन ऑर्डर टू गेट ऑन द पिच इट इज वेरी नेसेसरी कि जो इनोवेट कर रही है हम भी उनके साथ इनोवेट करके अपने पोर्टफोलियो को अलग लेवल पे लेके जाए. Right. Okay. Thank you so much, Priya ma'am. जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि बंधन एज अ फंड हाउस इज डूइंग रियली वेल. अगर आप इनके मैक्सिमम फंड्स का लास्ट 1 year 3 year रिटर्न्स देखोगे दे आर टॉपिंग द चार्ट. आई मीन बंधन स्मॉल कैप एक ऐसा समय जब स्मॉल कैप बहुत स्टैगरिंग रिटर्न्स दे रहे हैं. ऐसे पीरियड के अंदर में फर्स्ट रैंक आना इज अ टेस्टिमनी टू द इनपुट दैट द फंड मैनेजमेंट टीम इज डूइंग. So small cap category के अंदर में first rank आना in last 1 year is excellent. And if I talk about the long term returns, then we need to look at the Bandhan Sterling Value Fund, जिसने 10 साल के अंदर में second rank maintain किया है, which is a super performance from them. In fact, of late अभी मैं ज़्यादा large cap biased funds advise करने के लिए कह रहा हूँ. And on that ground, Bandhan Core Equity makes all the more sense. It's a large and mid cap fund, and as Priya ma'am rightly said, कि अभी large and mid cap में भी उनका large cap portion जो है वो ज़्यादा heavy है. Right. So before I move on to the next set, which is the question and answer set, मैं एक छोटा सा announcement कर देता हूँ that there has been a slight change in the training calendar that we had shared with all of you. हमने NISM May batch जो हमने अनाउंस किया था कि हम 8th of May से स्टार्ट करने वाले थे. ड्यू टू सर्टेन स्केड्यूलिंग इश्यूज वी विल हैव टू मूव दैट डेट्स एंड हमने नया डेट जो अनाउंस किया है दैट द न्यू NISM May बैच is going to start from 16th of May and not 8th of May. So जो 4 वेबिनार क्लास के डेट्स हमने अनाउंस किए हैं वो 16th May को है, 20th, 22nd and 24th May को है. Within these dates only we'll be able to complete the NISM batch, and at the same time जो physical class हमारा होगा, revision class जो हमारा होगा, that would be conducted on 29th of May. So ये नया ट्रेनिंग कैलेंडर आप लोग सबके साथ में सर्कुलेट कर दिया जाएगा. एंड माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू वुड बी कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं जिन्होंने अभी तक एग्जाम क्लियर नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू एनरोल फॉर द NISM May बैच. यू कैन टॉक टू देवलीना, उनका नंबर शेयर मैं कर दूंगा अलग से ग्रुप में. आप उनके साथ में बात करके अपने आप को एनरोल करा लीजिएगा. द अप्रैल बैच जिसको हमने भी रिसेंटली कंक्लूड किया था, people have now started sitting for the examinations, and I can see that already 8 people from the April batch have already cleared the examination in the last 4 days. In fact, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, I'm very happy to share that 2 more people have cleared their examination on today's date only. So I hope the trend continues, and in this month we will be producing at least 30 to 40 new ARNs for the MF industry. All right, so that was the update from my side.
अभी आगे बढ़ते हैं एंड आई वुड नाउ रिक्वेस्ट पीपल टू पार्टिसिपेट इन द Q&A सेक्शन एंड अगर आपके कोई भी सवाल जवाब अगर हैं तो यू कैन आस्क डायरेक्टली टू मीनाक्षी मैम बाय रेजिंग योर हैंड एंड आई विल देन अनम्यूट यू। सो शिवाशीष पॉल जी ने अपना हैंड रेज कर रखा है। सो शिवाशीष दा, अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लो और मीनाक्षी मैम से अपना सवाल कर लो। Yes, please. Hitesh ji, very good evening, गुड इवनिंग दादा। ma'am. Good evening to you. Regarding Good the evening, concept sir. selling, what you would recommend the best this investment plan for our new customer, new investor rather? शिवाजी दा, एक बार आप अपना क्वेश्चन फिर से बोल दो कि आपकी आवाज ब्रेक कर रही थी तो थोड़ा सा समझ में कम आया। आप अपना सवाल अगर वापस कर लो। अच्छा अच्छा, हितेश जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी मैडम जो बात की है रिगार्डिंग कंसेप्ट सेलिंग, तो व्हाट वुड बी द बेस्ट कंसेप्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन म्यूचुअल फंड nowadays, like innovation fund or a large cap fund? So what you would suggest to pitch our investor right now? सर से सबसे मीनाक्षी पहले मैम, ना आप मैं आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। सर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ना कि जैसे एसआईपी एक कॉन्सेप्ट है कि आप वो कॉन्सेप्ट कैसे उनको सेल करोगे, तो वो कैसे सेल करना है मैंने आपको बता दिया। आपको जो सवाल है ना, सवाल ये पूछ रहा है कि मैं अपने कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट सेल करूं। Right, ma'am. So there is a difference between concept and product, sir. ठीक है, कॉन्सेप्ट सेलिंग तो आपने कर दी। अब जब आप प्रोडक्ट सेलिंग पे आओगे, सी देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट यू नीड टू कंसिडर, राइट, बिफोर यू गो अहेड एंड सेल दी प्रोडक्ट। अब फैक्टर्स कुछ आ जाते हैं कि भाई आपका जो कस्टमर है उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, ओके आपका जो कस्टमर है उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, ओके उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिस ऑन दिस, ओके अगर केवल हम कह देते हैं न्यू टू इन्वेस्टमेंट कस्टमर है, सो आई थिंक ये Right. चीजें हैं जिसके ऊपर आप पहले उनसे डिस्कशन कर लो, ओके कि व्हाट इज देयर इन्वेस्टमेंट होराइजन, इक्विटी डेट, किसके ऊपर उनका ज्यादा एक्सपोजर वो रखना चाहेंगे। बिकॉज आप जानते हो कि अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है मतलब रिस्क भी हाई होगा, राइट। तो आई सजेस्ट आप ये सारी चीजें ना पहले एक बार आप डिस्कस कर लो, एंड उसके बाद में दैट पॉइंट राइट पॉइंट ऑफ टाइम क्या उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं। ओके मे बी प्रिया जो आपकी रिलेशनशिप मैनेजर है, शी इज द एप्ट पर्सन टू गाइड यू ऑन दिस सर, बट उसके लिए आप ये जो कुछ बेसिक डिस्कशन है ना पहले वो आप कर लो अपने कस्टमर से, ठीक है Okay, ma'am. ना। ओके Yeah. ठीक है, Thank थैंक you. यू सो So we मच should सर, थैंक यू। understand his need and the profile, what he like to invest. एग्जैक्टली सर, पहले आप प्रोफाइलिंग तो कीजिए कस्टमर की, है ना, जी, उसके जी। बाद ही आप उसको ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट सजेस्ट कर पाएंगे। Okay, Right. thank you so much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Okay, so if anybody else has any question, then please feel free to raise your hand. मैं आपको अनम्यूट कर लूंगा या फिर मैं आपको चैट बॉक्स पे भी अपना सवाल कर सकते हैं। ओके, आई कैन सी द्वारिका जयमन सर ने अपना हैंड रेज किया है। द्वारिका सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना सवाल करिए मैम से। बिफोर सर आस्क द क्वेश्चन, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस दैट द्वारिका सर इज अ रिटायर्ड पर्सन जिन्होंने आज जयपुर से NISM 5A एग्जामिनेशन क्लियर किया है, and he's about to start his mutual fund journey with us. So lovely to have you in this conversation, sir. And Dwarika sir, आप अपना सवाल रखिए मीनाक्षी मैम से। मैम मेरा एक प्रश्न है कि हमारे प्रोस्पेक्ट्स को समझाने के लिए क्या आप हमें पीपीटी अवेलेबल करा देंगे, तो हमारे लिए वो सुविधाजनक हो जाएगा उन लोगों को समझाने के लिए। ओके सबसे पहले द्वारिका जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके Thank you, ma'am. आपने जो ये काम किया है ना कि रिटायरमेंट के बाद आपने ये अपना NISM क्लियर किया है, सर हैट्स ऑफ टू यू। बिकॉज आज के टाइम पे क्या होता है ना, कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद किसी को और पढ़ाई करने की मन नहीं होती है, राइट। मैंने सेबी का इन्वेस्टर एग्जामिनेशन भी कर लिया क्लियर। वेरी गुड सर, क्या बात है, आप इंस्पिरेशन हो सर दूसरों के लिए। ओके नाउ कमिंग टू योर पॉइंट द्वारिका जी, ओके ड्यू टू कंप्लायंस रेगुलेटरी इश्यूज सर, आई एम सो सॉरी कि हम आपसे ये प्रेजेंटेशन तो नहीं शेयर कर पाएंगे,
ओके, बट देन देर आर सर्टेन टिप्स जो हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे, जिसके बेसिस पे आप जो है अपने कस्टमर के साथ ये डिस्कशन को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, मैं फिर चलो मैं पीपीटी बनाना भी सीखूंगा, फिर मैं अपने से बना के आप लोगों के टिप्स के आधार पे मैं अपना पीपीटी बना के शो करूंगा। हाँ सर, उसमें आपको जो भी हेल्प चाहिए ना सर, मैं पर्सनली आपकी मदद करूंगी सर, ठीक है जी, ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैं खाली इतना आपको बता देता हूँ कि देखो होता क्या है ना कि एएमसी फ्रेटर्निटी से बहुत सारे कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिस वजह से वो बहुत कुछ शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे एंड पे ना, फिनोमैटिक के एंड पर हम लोग अपने पार्टनर्स के लिए बहुत सारे प्रेजेंटेशंस बना के रखे गए हैं। तो अगर मान लो आपने अगर किसी रिटायर्ड कस्टमर से बात करना है तो उसके लिए क्या प्रेजेंटेशन होगी, किसी को रिटायरमेंट प्लानिंग समझानी है तो उसके लिए क्या प्रेजेंटेशन होगी, बच्चों के एजुकेशन के लिए आप कैसे प्लान करोगे। सो वी हैव अ होल होस्ट ऑफ प्रेजेंटेशंस। ओह देन ओके सर, बस यही चाहिए, इतने टूल पर्याप्त होंगे मेरे लिए। तो बस सर, अभी आप जुड़े हो, अभी आपको हमने आपको अपना सिस्टम्स, हमारे क्या क्या रिसोर्सेज है वो अभी तक आपको बताए नहीं, बट जरूर उस बारे में बात होगी एंड यू विल हैव इनफ मटेरियल विद यू टू टॉक टू योर कस्टमर्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच द्वारिका सर। एक्सीलेंट सेशन सर, आज का बहुत मोटिवेशनल, मैम का बहुत अच्छा तरीका समझाने का। हम लोग भी हमारे प्रोस्पेक्ट्स को इसी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर। सिंपल है, इमोशनली एंड लॉजिकली आप कनेक्ट कर लोगे ना, तो आई थिंक इट इज देन अ केक वॉक सर। थैंक यू मैम। Thank you. Hitesh, I have next 2 to 3 minutes. I have a hard stop because I have to join another meeting at 6:40. Okay, so कोई बात नहीं मैम, आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस बिकॉज आई थिंक और कोई हैंड रेज मुझे नहीं दिख रहा है। रीजा मैम पूछ रही है मैम कि सर ये सारे प्रेजेंटेशंस कहाँ मिलेंगे। तो रीजा मैम मैं बता देता हूँ कि ऑल दीज प्रेजेंटेशंस दैट आई हैव आर देयर इन फिनोमैटिक पाठशाला। सो फिनोमैटिक पाठशाला में आप कैसे ये सारे सवाल देख पाओगे, सारे प्रेजेंटेशंस देख पाओगे, इसको मैं ग्रुप में लिख दूंगा एंड देन यू कैन काइंड ऑफ डाउनलोड दोज प्रेजेंटेशंस, शो इट टू योर क्लाइंट्स एज एंड व्हेन यू वांट। मैं आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड बैच में ऐड करना होगा। तो इन केस रीजा मैम अगर आप म्यूचुअल फंड बैच में एडेड नहीं हो तो प्लीज गेट इन टच विद अस एंड वी विल ऐड यू टू दैट म्यूचुअल फंड बैच। अदरवाइज इट्स ऑल अवेलेबल ओवर देयर। सो थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम कि आपने अपना समय निकाला, आपने इतना समय निकाला। I mean, we have exceeded the time and it's now 1.5 hours that we have been And doing you know this what? session. It is so. I'm so happy to see that still, I'm sure that if I want to continue for another half an hour, 45 minutes, I know people will be there with me. But unfortunately, ये मेरा hard stop है. So it was great connecting with the entire team of Finnotics. Hitesh, thank you so much for arranging this. Thanks, Priya, and I'm sure we'll connect again. Yeah, thank you, Priya ma'am. आप काफी मेहनत कर रहे हो फिनोमैटिक के ग्रोथ के लिए। You were there with us in the entire झाड़ग्राम ट्रिप। आप मॉर्निंग 6:30 पे निकल के रात को 1:30 पे रिटर्न किए हो। So I'm sure your hard work will pay off and हमारी टीम जो है आपको बिजनेस में जरूर सपोर्ट करेगी। Thank you so much. Hitesh, Thank you so much. let me also tell you, I feel, and Priya, I will take this honor in telling this to Hitesh. Priya is one of our top performers in the country, and the support that you will get from Priya is, maybe at times, Hitesh, आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतना सपोर्ट हमें कैसे मिल सकता है। So I think wish you both, Priya and Finomatics, a lovely journey ahead and all the best from my side. Thank you so much. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.